میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں, کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے, وہ ہمیں دیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں. وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھارت کو پلوامہ واقعے کی تحقیقات کرانے کی مخلصانہ پیشکش کے باوجود بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی. انتہا پسند بھارتی حکومت پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگی. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. 26 فروری صبح کے ابتدائی اوقات میں متعدد بھارتی طیاروں نے مختلف مقامات سے پاکستانی فضائی حدود کی جانب بڑھنا شروع کر دیا, جس کا پاکستان کے فضائی محافظوں نے فوری جواب دیا. I am painting 4 high-speed aircraft near international border in Fazilka sector. The activity is also developing in south as well. Hot scramble, 2 ships for Fazilka sector. Copy sir. Hot scramble, hot scramble, hot scramble. I'm also painting high-speed activity in the north. Divert, cap or line of control. Once they met with Pakistan. جب ان بھارتی طیاروں نے پاکستانی لڑاکا طیاروں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے منصوبے میں بری طرح سے ناکام ہو گئے. انہوں نے وہاں سے فوری طور پر بھاگ نکلنے میں ہی اپنی آخرت چاہی. بھارتی معراج 2000 نے اسپائس 2000 سٹینڈ آف بوم لانچ کیے جو کہ مطلوبہ ہدف سے بہت دور جا گرے. اگرچہ یہ بھارتی سٹینڈ آف ویپنز 60 کلومیٹر سے زائد تک کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, لیکن حقیقت میں یہ صرف 50 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ ہدف سے بہت دور ایک خالی بیابان علاقے میں جا گرے. یہ روایتی بمباری سے مختلف نوعیت کی کارروائی تھی, جس میں وہ بالاکوٹ کے اوپر نہیں آئے کیونکہ اس صورت میں ہم انہیں وہیں مار گراتے, بلکہ یہ کسی بھی پاک بھارت تنازع میں پہلا موقع تھا جہاں سٹینڈ آف ویپن کے ذریعے مطلوبہ ہدف کو میلوں دور سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اگرچہ اس ناکام حملے کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی و مالی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن پاکستان کی خود مختاری پر یہ ایک براہ راست حملہ تھا. نریندر مودی کے نزدیک پاکستان کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی اسے آئندہ ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے جتوا سکتی تھی. ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی. مسئلہ کشمیر جو کہ 1947 سے چلا آ رہا ہے, جس کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی حق خود ارادیت کی تحریک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے, ہندوستان صرف اس کو دہشت گردی کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اس پورے خطے کی 1.2 ارب آبادی کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر لے آیا. ہندوستانی قیادت ذہنی پسماندگی اور احساس کمتری کا شکار ہے. یہ ایک ایسے ڈائناسور کی مانند ہے جو جسامت میں بہت وسیع لیکن عقل سے عاری ہو. حالات کی کشیدگی کے پیش نظر وزیر اعظم نے اسی روز قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کے تمام فریقین کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہندوستان کے اس بزدلانہ حملے کا محدود لیکن بھرپور جواب دیا جائے گا. The response will come at the point and time of our choosing. پاک فضائیہ جو کہ پہلے سے ہی نہ صرف تیار بلکہ مختلف اہداف کی نشاندہی بھی کر چکی تھی, کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا. اور یوں اگلے ہی روز صبح سویرے خفیہ مقامات پر آپریشنل بریفنگ کا آغاز ہو گیا, کیونکہ اس روز لائے جانے والی کارروائی کا کل مقصد اپنے عزم و عالی شان, پیشہ ورانہ قابلیت اور جنگی صلاحیت سے ہندوستان کو خبردار کرنا تھا. لہٰذا جو زمینی اہداف چنے گئے وہ لائن آف کنٹرول کے پار بھارتی چھاونیوں میں موجود اہم بھارتی تنصیبات سے ملحقہ خالی مقامات تھے. Aim of our today's mission is going to be 100% bombs on target, whereas sweep is going to ensure survival of our on strikes. It's going to be our top priority of the mission. 27 فروری 2019 کی صبح 9 بجے جدید ہتھیاروں سے لیز مختلف طیاروں پر مشتمل اسٹرائک فورس اپنے مشن کے لیے روانہ ہونے لگی.
बल्लेबाजी के अगले 24 घंटे भारतीय फिजाइया मुकम्मल तौर पर चौकन्ना थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान भी रात के किसी पहर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी हमला उनकी तौक़ात के बरक्स दिन की रोशनी में किया। हमने अपनी कार्रवाई का आगाज 27 फरवरी को सुबह 9 बजे शुरू किया। इस हमले का आगाज बमबार तैयारों ने किया, जिनमें 2 मिराज 5PS जो कि H4 स्टैंड ऑफ वेपन से लैस थे, और उनका साथ GF-17 थंडर तैयारे दे रहे थे जो कि 1000 पाउंड रेंज एक्सटेंशन किट्स बम्बू से लैस थे। मिराज और JF-17 थंडर मकबूजा कश्मीर में ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। Pakistan should be on notice that all options are on the table. All options are on the table. अहदाफ के करीब पहुंचते ही H4s फायर कर दिए गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पायलट टारगेट बॉक्स में हदफ को निशाने में लेने के बाद इसका रुख मोड़ देता है, जिससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि किसी भी इमारत को निशाना बनाने से इज्तिनाब किया गया है। On that, I immediately, जो ही H4 अपने हदफ के करीब पहुंचा, मैंने इसका कंट्रोल अपने पास लिया और इसका रुख दाएं जानिब पे खाली जगह की तरफ मोड़ दिया, और बिल आखिर ये वहीं जा पॉइंट पे I have selected. H4 का वजन तकरीबन 2600 पाउंड होता है, जिसके धमाके की गूंज शदीद हौलनाक होती है। हमने किसी भी फौजी तनसीब को बराह रास्त निशाना बनाने से गुरेज किया, क्योंकि हमारा मकसद इनको किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान पहुंचाना नहीं था। सिर्फ दुश्मन को खबरदार करना था कि हम जब चाहें जहां चाहें तुम्हें निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान की इस कार्रवाई से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मौजूद भारतीय छावनियां जोरदार धमाकों से लरज़ उठी और फिजाई गश्त पर मामूर भारतीय तैयारों को लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब रवाना कर दिया गया, जिनका सामना करने के लिए पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारे पहले से वहां मौजूद थे। याद रहे कि फिजा में मौजूद तमाम भारतीय तैयारों का आपसी राब्ते का निजाम वहां पर मौजूद पाक फिजाइया के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारे ने पहले ही से नाकारा बना दिया था, जिसके बायस भारतीय तैयारों का फिजा में रहना और सूरत हाल को समझना काफी दुश्वार हो गया होगा। अपने हदफ की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने भारतीय तैयारे को निशाना बनाया। Camera 1, Fox 3 off the group. SU-30 कोई मामूली तैयारा नहीं, ये एक मल्टी रोल इंतहाई जदीद तैयारा है। अपने साथी का अंजाम देखकर फिजा में मौजूद भारतीय तैयारों की सफों में यकदम खलबली मच गई। उस रोज इनके पास पाकिस्तान के किसी भी मुमकिना हमले को रोकने की मुकम्मल जंगी सलाहियत मौजूद थी, क्योंकि वो पाकिस्तान से किसी ऐसे ही जवाबी हमले की तवक्को भी कर रहे थे। जब ये हमारी सरजमीन पर बम गिराकर उस रोज भागे, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि आने वाले दिनों में पाक फिजाइया इनका क्या हशर करेगी। इसी असना में भारतीय फिजाइया ने अपने मार गिराए जाने वाले SU-30 MKI के पायलट्स को फौरन तलाश करना शुरू कर दिया और मदद की गर्ज से MI-17 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को फौरी तौर पर रवाना किया, जिसको श्रीनगर में मौजूद बुखलाहट के शिकार भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान का तैयारा समझकर उसे वहीं मार गिराया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 6 भारतीय फौजी अपने ही एयर डिफेंस के हाथों हलाक हो गए। यहाँ सवाल ये उठता है कि लड़ाका तैयारों की झड़प के दरमियान एक हेलीकॉप्टर को फिजा में क्यों बुलंद किया गया। यकीनन यही मालूम होता है कि इस रोज वो हेलीकॉप्टर वहां सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर था, ताकि गिराए गए Su-30 के पायलट को फौरी इमदाद मुहैया कर सके। इस इबरतनाक शिकस्त को देखते हुए भारतीय फिजाइया ने ताज़ा दम फिजाई दस्ते को फिजा में भेजने का फैसला किया। इस मकसद के लिए श्रीनगर में तैनात 5 MiG-21 बाइसन
तैयारों को फौरी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब रवाना होने का हुक्म दिया गया और उन्हीं में से एक तैयारे को सीनियर भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहा था। जैमिंग एयरक्राफ्ट ने शानदार जंगी सलाहियत का मुजाहरा किया और भारतीय तैयारों का आपसी मवासलाती निजाम दरहम बरहम करके रख दिया। अभिनंदन कम्युनिकेशन जैम होने के बायस अपने ग्राउंड कंट्रोल की किसी भी किस्म की हिदायत सुनने से महरूम था। इससे पहले कि अभिनंदन हालात का ठीक तरीके से जायजा ले पाता, विंग कमांडर नोमान अली खान ने उसे लाइन ऑफ कंट्रोल उबूर करते साथ ही अपने मिसाइल का निशाना बना डाला। जवाब शब मिला है उसको। दुश्मन को एक सोचे समझी मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया और इस तर्ज की कार्रवाइयां हम मामूल की जंगी मशकों में सर अंजाम देते रहते हैं। Copy kill, other one trailing by 10 miles. ये सब दिन के वक्त हुआ, लेकिन भारतीयों के लिए ये दिन किसी तारीख रात से कम न था। उन्हें कुछ अंदाजा ना हुआ कि कब और कैसे इनके 3 तैयारे मार गिराए गए। अभिनंदन अपने तैयारे से इजेक्ट कर गया और बिलाखिर पाकिस्तानी फौज के दस्तों ने उसे अपनी तहवील में ले लिया। भारतीय एयरफोर्स का तैयारा मार गिराया है पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे हैं जो आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। ये है कि 2 तैयारे इस वक्त भारतीय गिराए जा चुके हैं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। भारत ने रात के अंधेरे में किया वार, शाहीनों ने दिया दिन की रोशनी में जवाब। मुझे ज़राए अबलाग से पता चला कि पाकिस्तान ने भारत का Su-30 और MiG-21 बाइसन तैयारा मार गिराया है। मेरे लिए ये बहुत ही हैरानकुन खबर थी। वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करते हुए हिंदुस्तान को एक बार फिर अमन का पैगाम दिया ताकि दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी में कमी लाई जा सके। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। ये एक बहुत शानदार और काबिल तारीफ अमल था। हमारे बेशतर फातिहीन ने अपने दुश्मनों के साथ इसी किस्म का बर्ताव रखा। इसको रिहा करना पाकिस्तान का बड़ापन था। इस शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत ने ढटाई से झूठ बोलना शुरू कर दिया। And you gave him credit for the F-16. That is his kill. He was the only guy there. Yeah, that with an R-73. Yeah, that is the weapon that he had selected. आप देख सकते हैं कि ये R-73 मिसाइल की मोटर अभी भी इसके साथ नस्ब है और इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग यूनिट भी यहाँ मौजूद है और यही वो मिसाइल है जिसके बारे में हिंदुस्तान में दावा किया जाता है कि उसने पाकिस्तान का एक तैयारा मार गिराया था, जबकि ये मिसाइल बिल्कुल सही और गैर इस्तेमाल शुदा हालत में यहाँ मौजूद है। 27 फरवरी 2019 को होने वाली इस फिजाई झड़प के नतीजे में मसला कश्मीर को एक बार फिर दुनिया के सामने भरपूर तरीके से उजागर किया गया और कई ममालिक के सरबराहान ने इस मसले के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। All the heads of states are actually aware of the Kashmir issue today and they understand the consequences if this goes wrong. Pakistan security forces are strong enough
powerful enough to handle any sort of situation. शुजातों का खुमार मैं हूँ, फलक का सारा वकार मैं हूँ, शुजातों का खुमार मैं हूँ, वतन की मिट्टी में तेरे सदके अज़ल से